میں مرشد ضیاء، آپ دیکھ رہے ہیں TTS نیوز۔ اس وقت دن کے 1 بجنے والے اور پیش خدمت ہے اس وقت ہمارا خاص پروگرام روبرو۔ ہم تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے 3 طلاق اور میڈیائی پروپیگنڈا۔ اس پر بحث کے لیے ہمارے پاس مہمانوں کی ایک خاص ٹیم موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بحث کا آغاز کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے اس پروگرام کے خاص مہمانوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا ممتاز احمد صاحب ہیں، اور مشہور و معروف اسلامی اسکالر پروفیسر زید امام صاحب بھی موجود ہیں، اور تیسرے مہمان ہیں NTA حکومت کے منتری اور BJP کے قدآور لیڈر امان اللہ خان صاحب، اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کے ترجمان مولانا حسن رحمانی صاحب بھی اس پروگرام کے حصے ہیں، اور 5ویں مہمان ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ثناء اللہ صاحب۔ آئیے ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل علی جناب سرفراز احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیے ہم ان تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز سب سے پہلے NDA حکومت کے منتری اور BJP کے قدآور لیڈر امان اللہ خان صاحب سے کرتے ہیں۔ امان اللہ خان صاحب، حکومت میڈیا کے ذریعے آپ کی حکومت 3 طلاق کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں اٹھا رہی ہے؟ اس بل کے پیچھے حکومت کی کیا منشا ہے؟ دیکھیے مرشید جی، ہماری جو حکومت ہے NDA کہ اس نے 2014 میں الیکشن سے پہلے یہ نعرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور ہم اپنے اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہم ہر جگہ مساوات اور برابری کی کوشش کر رہے ہیں، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ظلم اور ناانصافی کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ مہیلاؤں کی سماجک سرکشا ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہو۔ بھید بھاؤ سے مکتی اور آزادی ملنی چاہیے، اس کے لیے ہم مسلسل کوشش اور پریاس کر رہے ہیں، اور کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود 3 طلاق بل لانے کے لیے ہم پرعزم ہیں، اور ہم اس لیے پرعزم ہیں کہ ہماری مسلم بہنوں کو ایک بہت بڑے جیون سنکٹ سے مکتی ملے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم پروشوں کی طرح مسلم مہیلاؤں کو بھی مکمل اختیار ملے، اور 3 طلاق کی وجہ سے تکلیف دہ زندگی جینے پر مجبور نہ ہو۔ یہ 3 طلاق کی آواز ہمارے دیش کی ان ہزاروں مہیلاؤں کی آواز ہے جو 3 طلاق کا درد جھیل رہی ہیں۔ ہمارے دیش میں ٹرپل طلاق کا زہر پینے والی نہ جانے کتنی مسلم مہیلائیں ہیں جو کسی نہ کسی ڈر سے خاموش رہ جاتی ہے۔ یہ ان کے حق کی آواز ہے۔ آج بھی نمکین کا پیکٹ سمے پر نہیں ملا، کھانے میں نمک کم ہو گیا تو مہیلاؤں کو طلاق دے دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے 3 طلاق دے دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار ہے۔ ہماری حکومت 1400 سال سے ہو رہے اس ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے کہ جس مہیلا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک پروش کو اپنایا، اس کو ایک دم سے ایک جھٹکے میں 3 طلاق کے ذریعے سے الگ کر دینا کتنا عجیب لگتا ہے۔ ہماری سرکار مہیلاؤں کے حقوق چاہے وہ کسی بھی طریقے کے ہوں، اسے مہیلاؤں تک پہنچانے کا پریاس کر رہی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا ممتاز احمد صاحب کے پاس۔ مولانا ممتاز احمد صاحب، حکومت میڈیا کے ذریعے اس بات کو پھیلا رہی ہے کہ 3 طلاق بل ظلم کے خلاف آواز ہے، مسلم مہیلاؤں کے حق کی آواز ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اینکر صاحب، یہ سب چناوی ہتھ کنڈے اور بکواس ہیں۔ صرف اور صرف چناوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ مسلم عورتوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ انہیں مسلم عورتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مسلمان مرد چونکہ ان کے جھانسے میں نہیں آ پا رہے ہیں تو یہ عورتوں کے ساتھ مسلم کمیونٹی میں گھسنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان عورتوں کا ووٹ حاصل کر سکیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے ذریعے سے مسلمان بہنوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمان عورتوں پر طلاق بہت ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سن 2011 کی سنسیکس کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستان میں طلاق دینے والوں میں نمبر 1 ہندو ہیں۔
हिंदू फैमिली 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सिख कम्युनिटी है, तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन है और नंबर 4 पर जैन है, और इसके बाद 5वें नंबर पर जाकर मुसलमान आते हैं। तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों में से सिर्फ 2 लाख के करीब मुतल्लका औरतें हैं, जबकि 7 करोड़ हिंदू औरतें ऐसी हैं जिनके शौहरों ने उन्हें यतीमा और लावारिसों की तरह लाचार और मजबूर छोड़ रखा है, विधवा और जानवरों की तरह छोड़ रखा है। न उन्हें आजाद करते हैं कि वह दूसरी शादी कर सके, और न ही उन्हें अपनाते हैं कि वह सुहागन बनकर रह सके। वृंदावन के इलाकों में ऐसी औरतें भीख मांगकर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? क्या वह औरतें नहीं हैं? क्या वह महिलाएं नहीं हैं? क्या उनकी इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? सिर्फ मुस्लिम औरतों की बात क्यों करते हैं? मुस्लिम औरतों की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि दुनिया की तमाम औरतों को उन्होंने अपने हवस का शिकार बना लिया है, और अगर महफूज हैं तो सिर्फ मुस्लिम औरतें महफूज हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि उन्हें भी अपने हवस का निशाना बनाया जाए। लेकिन आखिर में मैं ये कहता चलूं कि मुसलमान मर्द और औरतें अगर अपने नबी के दामन को थामे रहेंगे, माँ की गोद से लेकर कब्र तक नबी की सुन्नत को पकड़े रहेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज मौत तो आ सकती है मगर जिल्लत और रुसवाई कभी नहीं आ सकती। नाज़रीन, हम देखते हैं कि इस्लाम ने मर्द के हाथ में तलाक का हक देकर उसे बाइख्तियार बना दिया है और औरत को यूं ही छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में हम जानना चाहते हैं जमीयत उलमा हिंद के तर्जुमान मौलाना हसन रहमानी साहब से कि मौलाना हसन रहमानी साहब, इस्लाम में औरतों के लिए तलाक के मुतबादिल क्या है? आपने बहुत अहम सवाल किया है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मर्द को तलाक का इख्तियार दिया गया और औरत को यूं ही छोड़ दिया गया, बल्कि शरीयत ने औरत को तलाक के 3 मुतबादिल दिए हैं। पहला मुतबादिल खुला है, यानी शौहर और बीवी आपसी रजामंदी से इस रिश्ते निकाह को खत्म कर दें। अगर दोनों राजी हो जाएं तो इस तरह 5 मिनट के अंदर ये रिश्ता खत्म हो सकता है और इद्दत के बाद औरत के लिए दूसरे निकाह की गुंजाइश निकल आती है। दूसरा मुतबादिल फस्ख़ निकाह है, यानी अगर शौहर बीवी पर जुल्म करता है और तलाक भी नहीं देता है तो ऐसी सूरत में औरत अदालत से रुजू करके निकाह को फस्ख़ करा सकती है। और तीसरा मुतबादिल तफवीज़ तलाक है, यानी औरत निकाही के वक्त निकाह नामा में इस शर्त को शामिल कर ले कि मैं जब भी चाहूंगी मुझे अपने ऊपर तलाक देने का इख्तियार रहेगा। इसको तफवीज़ तलाक कहते हैं। ऐसी सूरत में औरत जब भी चाहे बगैर शौहर के अपने ऊपर तलाक वाक़ई कर सकती है। तो हमें हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि मर्द को तलाक का इख्तियार देकर बाइख्तियार बना दिया और औरतों को यूं ही छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना हो, नाइंसाफी ना हो, बल्कि एहसान और हमदर्दी का मामला हो, जैसा कि कुरान में हुक्म है फ़इम्साकुम बिमारूफ और तसरीहुम बिइहसान। नाज़रीन, अभी बहस जारी है, अब मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम। हर के मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदलावे न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। हर के मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदलावे न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह।
मशहूर मारूफ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर जैद इमाम साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे एक इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं। प्रोफेसर जैद इमाम साहब, इस्लाम में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। हम जानना चाहते हैं कि सबसे नापसंदीदा चीज होने के बावजूद भी इस्लाम में इसकी इजाजत क्यों दी गई? नापसंदीदा और मबगूज चीज की तो इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। वो ये है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक प्यार और सुकून का ताल्लुक है, मोहब्बत और प्रेम का ताल्लुक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी भी वजह से आपस में नफरतें इतनी बढ़ जाती है कि इस रिश्ते को बाकी रखना दुश्वार हो जाता है। निकाह का जो मकसद होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर निकाह को बाकी रखने पर मजबूर किया जाए तो दोनों की जिंदगी सख्त तनाव में हो जाती है। बाज़ दफा इससे बढ़कर नाखुशगवार वाकया पेश आ जाते हैं। मसलन मियाँ बीवी में नफरतें इतनी बढ़ गई कि मर्द किसी भी तरह औरत के साथ रहना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप उसको मजबूर करें कि नहीं उसके साथ तुम्हें रहना ही होगा, तो ऐसी सूरत में मर्द गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करने लगता है। मसलन वो अपनी बीवी पर तोहमत लगाने लगता है कि मेरी बीवी बदचलन है, दूसरे मर्दों के साथ उसका नाजायज ताल्लुकात है। और बाज़ दफा मियाँ बीवी में से हर एक दूसरे की जान तक लेने पर उतर आते हैं। औरत को जिंदा जला देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं और कहते हैं कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन हकीकत में शौहर ही उसका कातिल होता है। तो इसी सूरत में अगर तलाक का रास्ता न हो तो इस तरह के गैर कानूनी वाकयात सामने आते रहेंगे। आप देख लीजिए 2005 ईस्वी से 2009 ईस्वी तक जितनी औरतें मारी गई हैं उनकी तादाद तकरीबन 40,000 है। ये तो वो केस है जो कोर्ट के सामने आ गए हैं। ऐसे बहुत से केस है जो कोर्ट के सामने नहीं आ पाए हैं, वह इनके अलावा है। तो जब मर्द और औरत को इस जिंदगी के जो पार्टनर है उनको इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई कानूनी रास्ता न हो तो इस तरह गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करने लगते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों में चूंकि तलाक की गुंजाइश है, इसलिए गुर्बत और तालीमी कमी के बावजूद मुसलमानों की यहाँ औरतों को जिंदा जलाने के वाकयात दूसरे मजहब के मुकाबले में कम पेश आते हैं। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब के पास। सनाउल्लाह साहब, आप ट्रिपल तलाक के मुताल्लिक क्या कहना चाहते हैं? जी मुर्शिद जी, मीडिया और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो तलाक का वावेला किया जाता है ये महज झूठ, फरेब और प्रोपेगंडा है। तलाक मजहब इस्लाम में एक इमरजेंसी गेट की तरह है। जिस तरह बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाजों में इमरजेंसी गेट हुआ करते हैं ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो आदमी उस गेट से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके। ठीक इसी तरह मियाँ बीवी की इस देवाजी जिंदगी में अगर खटपट हो जाए तो सबसे पहले इस्लाम ये हुक्म देता है कि बातचीत के जरिए मामला हल कर लो। फिर भी ना बने तो और बातचीत कर लो। फिर भी ना बने तो इस्लाम अब कहता है कि जरा प्यार से समझा लो। फिर भी ना बने तो इस्लाम कहता है कि माँ बाप को बैठा कर बात कर लो। फिर भी ना बने तो इस्लाम कहता है कि थोड़ा सा अलग हो जाओ। फिर भी ना बने तो इस्लाम अब कहता है कि थोड़ा सा और अलग हो जाओ। फिर भी बात ना बने तब इस्लाम ये हुक्म देता है कि रिश्तेदारों को बैठा लो और दो धार्मिक और अच्छे लोगों को बैठा कर बात कर लो। फिर भी बात ना बने तो दो सालिसों को बैठा लो। फिर भी बात ना बने तो इस्लाम अब कहता है कि अगर दिल से दिल न मिले, एक दूसरे की वफादारी न कर सके, एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत से गुजर न हो सके, तो ऐसी जिंदगी जिसमें जहर ही जहर हो, ऐसी जिंदगी जिसमें कांटे ही कांटे हो, इस तरह की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दूसरे से अलग हो जाओ। इस्लाम ऐसी जिंदगी जीने से मना करता है जिसमें दुश्मनी हो जाए और बीवी शौहर को जहर देकर मार दे या शौहर बीवी को पेट्रोल छिड़क कर जला दे। इस्लाम ऐसी जिंदगी जीने से मना करता है जिसमें दुश्मनी हो जाए और मियाँ बीवी एक दूसरे के हत्या करने पर मजबूर हो जाए। एक दूसरे की जान लेने से बेहतर है कि तलाक देकर अलग हो जाओ ताकि बीवी दूसरी शादी करके सुहागन बन सके। इसीलिए इस्लाम ने तलाक का प्रावधान रखा है। इसके अलावा तलाक का और कुछ भी मतलब नहीं है। ये खामखा टेलीविजन के डब्बे में बैठकर
ये न्यूज एंकर उठा पटक के ये रहते हैं। एंकर इस तरह आता है जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिसाइल गिराने जा रहा है और जोर से चीखता है कि आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। लेकिन अगर उससे कह दिया जाए कि जरा ये खबर दे दीजिए, दाल में नमक कम होने की वजह से गुड़िया को तलाक दे दी गई, और वह उछलता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि जरा ये खबर दे दीजिए, तो उस पे उड़ीसा में खाना न मिलने की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, तो उसमें गहरे से ये खबर नहीं दी जाती है। इसलिए मैं मीडिया वालों से कहता हूँ कि ये जो बेईमानी का मापदंड और पैमाना है, इसे बदलो। नाजरीन, अभी आपने देखा प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब न्यूज एंकर का भी ऑपरेशन कर दिया। अब आइए इन तमाम महान व्यक्ति की बात सुनने के बाद मुंतजिर हैं हम प्रोफेसर सरफराज अहमद साहब की राय के लिए। अब आइए उनसे हम सवाल पूछते हैं। प्रोफेसर सरफराज अहमद साहब, ट्रिपल तलाक बिल के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया ने 3 तलाक मसला को हाईलाइट किया है। खुद गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक मुसलमानों में तलाक के वाकयात में 3 तलाक का परसेंटेज 0.8 है। लेकिन इस मसला को इस तरह उठाया गया गोया हर मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देता है। फिर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने 3 तलाक को कुछ महीनों के लिए बैन कर दिया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, यह सब कुछ औरतों के हमदर्दी के नाम पर किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इस औरतों के लिए मजीद दुश्वारियां बढ़ेंगी। इस बिल में जहाँ ये बात कही जा रही है कि मुसलमान औरतों को हक और इंसाफ मिलेगा, इज्जत की जिंदगी मिलेगी, जबकि इस बिल का तमाम शिक्षण और तफसीलात से साफ तौर पर मालूम होता है कि इस बिल को मुसलमान औरतों को मजीद मुश्किलात और परेशानियों में डालने और उनको शौहरों को जेल में भेजने के लिए तैयार किया गया है। हमारे कानून में औरतें अगर घरेलू तशद्दुद का शिकार हों तो डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए एक एक्ट है। इतना बेहतरीन एक्ट, इसको अगर खवातीन अपनाती हैं तो इसको अपने घर में भी रह सकती हैं, निकाली नहीं जाएंगी। लेकिन इस बिल में मुसलमान औरतों को मजीद मुश्किलात और परेशानियों में डालने और उनके शौहरों को 3 साल तक के लिए जेल भेजने के लिए किया गया है। इस बिल की पूरी कोशिश यह है कि एक सिविल मामले को मुकम्मल क्रिमिनलाइज किया जाए और उनको शौहरों को 3 साल तक के लिए जेल भेज दिया जाए। नाजरीन, हमारे तमाम पर मेहमान आपकी निगाहों के माथे के सामने हुए। आपने उनके बातों के लिए समाज के दलाइल भी आपके सामने आ गए, और अब ये खबर भी कि खुद हुकूमत वक्त ने ट्रिपल तलाक बिल को मुलतवी कर दिया है, तो इससे ये बात मालूम होती है कि ये सब लोगों की तवज्जो को